Jai Hind to everyone tuned. I am Sakshi, and on the behalf of Sunbeam School Leher Tara, I welcome you all to the fifth day of the Virasat series, an initiative to build a bridge between some exceptionally talented alumni who have won hearts all over the world and the students of Sunbeam School Leher Tara. So today, amongst us, we have another very talented alumnist, being a consistent learner and a performer. Mr. Satyam Mishra is passionately engaged in theatre. He has performed more than 30 plays on and off stage, learning different attributes of drama, sound, light, and amenity help. Jai Hind Satyam Bhaiya. Jai Hind, Sakshi, how are you? I'm good. How is your quarantine going? Just quite boring and quite interesting. Okay, so before we get started with the performance, I had a few questions in my mind. If you allow, may I go ahead? Yeah, please, sure. So, what was an early experience of yours where you felt that drama was that one thing you were very passionate about and wanted to continue further? Sakshi, it was a good question, by the way. My first interaction with stage is in was in year 2012. Actually, it was Milan's 12th annual function of Sunbeam School Annapurna. So first time I had participated in an event where I have to perform on stage, and I was very excited for that role. Uh, One thing is very interesting that I had no dialogues in that play, and the play was quite of 1 hour, and but then also I was very excited that I have to perform on the in front of huge audience and in front of lights with music and everything. So after that, I came to Lehertara, and then I changed my LDA from, and then dramatics just made me what I am today. Okay, thank you so much for sharing. So, according to you, what are the ethics of theatre? Sakshi, according to me, the ethics of theater, the actors should be disciplined, and I am very fortunate enough that I got the opportunity to study in Sunbeam. And as you know, that we have our motto, the duty, devotion, and discipline. So that seed which is sown into me from my school, by my school, this all that all nurtured me. And discipline is foremost things to have within you. And the second foremost thing is mm, observation. An actor should be a good observer. Not only an actor, an artist should be a good observer. If your observation skills is far better, then you can portray it into your art. So for me, discipline and observation. Thank you. I totally agree with you. If you could brief a little about what you are going to perform today for us. Yeah, actually, as you can see that I am looking so old, so I'm going to perform a character of 65 years of age, and it is a part of a play written by Kantanath ji, the play named Sankraman, and the play is all about three characters, their monologues: father, mother, and son. So I'm going to perform the father part. This play is all about generation gap. So I'm going to perform that only. Hope that our viewers can connect to this play, because it is so usual. Every son has some or the other misunderstanding with his or her father. So this is all about that only. I'm sure everyone is going to enjoy that. So, without wasting any Yeah. more time, let's get started with the performance. Over to you. Yeah, sure.
बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे दो, ये घर अब बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिंदा हूं इसीलिए देख देख कर उड़ते रहता हूं, इससे तो अच्छा था कि मर जाता, या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन देते, वही ठीक रहता। न अपनी आंखों से देखता और न अफसोस होता। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप मरे थे तो पूरा 1,500 का कर्ज छोड़कर मरे थे, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने का 1,500 आज का 1.5 लाख समझो, लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी, शादी करने, उसकी शादी की। हाँ, मानता हूं लड़का उतना अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मामूली मीटर रीडर था, लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं। फूल कर कुप्पा हो गई, पूरी सेठानी लगती। तक और जी, साल 2 साल में कभी बड़े भाई के यहाँ गई हो तो गई, नहीं तो प्रायः मेरे साथ ही रहती। क्या मजाल कि खाने पीने में कोई कोताही हुई। जब जब बीमार पड़ी डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी, ये नहीं कि 4 आने की होम्योपैथी या फिर वैद्य की पुड़िया लाकर दे दी, कभी नहीं। मरने से पहले तो पूरा 1 महीना अस्पताल में भर्ती रही। 1,000 रुपए लिए थे डॉक्टर ने, और बीवी के जेवर अब तक गिरवी पड़े, लेकिन कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। उस जमाने में भला क्या ही। सो माँ चल बसी। कहने को तो घर का ख्याल उन्होंने बाबू के जिंदा रहते नहीं किया, तो माँ के मरने के बाद क्या ही करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए थे। बाबू तब तक रिटायर हो चुके थे। उनके पेंशन से ही घर चलता था। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी तो पापू पास की दुकान में मुनीमगिरी करने लगे। मैं उस वक्त बीए में था, मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी। तब जाकर कहीं घर का खर्च संभला। मैं एमए में था कि बाबू अचानक चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा और रात को 10-11 बजे लौटा। 8-8, 10-10 ट्यूशनें एक साथ। तो जवानी इस तरह कट गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा।
बाबू रेलवे के मामूली नौकर थे। तनख्वाह ही इतनी नहीं थी कि अलल्ले तलल्ले होता। सुबह माँ बासी रोटी में घी और नमक लगा कर दे देती, बस वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी जाना ही नहीं। हाँ, इंटर में था तब जरूर मां से डरते डरते कहा कि पिताजी से कहकर एक साइकिल दिला दे। कॉलेज आने जाने में थक जाता हूं, और कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में तो पिताजी ने डपट दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, तो एक साइकिल खरीदी। सेकेंड हैंड, वो भी नीलामी वाली। तभी से इकन्नी या दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर हो जाए तो बनवा सके। तो भैया जवानी इस तरह कटी, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल शुरू से रखा। साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे, तभी से सूट पहन रहे हैं। खाने पीने में कोई कोताही हुई, सब घी दूध दही ब्रेड मक्खन जैम जेली सब, कि भैया इससे खा लो, बेटा उससे खा लो। बेटे ने कहा अब पापा मुर्गा बन के खिलाओ ना, तो मुर्गा बन के खिलाया। बेटे ने कहा पापा गाना गा के खिलाओ, तो गाना गा के खिलाया। जैसे बेटा खुश रहे। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से ले जा रहे। बीए में तो हमने बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया कि साहबजादे बड़े हो गए हैं, रुपए निकालना जमा करना सब सीख ले। कपड़ों का तो यह हाल कि 8वीं दर्जा तक स्कूल की ड्रेस चली। 2-2 जोड़ी जूते, एक काले रोज के लिए और दूसरे सफेद पीटी शू। फिर 9वीं में पहुंचे हैं, पापा आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, और वो भी बाटा या लिबर्टी। ये भी नहीं कि 1 या 2, 3-3 4-4, हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी कमी का एहसास न हो। खैर, अब तो अपनी मर्जी के मालिक है। बड़े हो गए, भगवान की दया से एक बच्चा भी है। लेकिन चाल ढाल अब भी वहीं उठते। होटल नहीं है साहब, घर है ये समझिए, और रात को लौटते हैं 11 बजे। कितनी बार कहा कि कम से कम एक बार घर आ जाया करो, फिर चाहे भले ही चले जाना। अरे मेरी न सही, अपने बीवी और बच्चे का तो ख्याल करो। अब देखिए, रोज न जाने कितनी वारदात होती है, जगह जगह पे लूट मार के केसेस। मन बड़ा बेचैन रहता है। और भाई 2.5 साल का एक बच्चा है, उससे जब भी पूछो बाबू पापा कहाँ है, कहेगा ऑफिस गए।
साला ऑफिस न हुआ जेल हो गया कि बिना जमानत पे छूटे बेचारे आए कैसे? मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कटी। मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों को किसी तरह की कमी ना हो, इसलिए मरने से पहले, रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से ये घर बनवाया। क्या मजाल की साहब कहीं गए? अरे पतलून की क्रीज नहीं बिगड़ जाती। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर दिया, अब पापा पढ़ना है। ठीक है भाई, पढ़ो, मैं हूं ना भागदौड़ करने के लिए, तुम्हें काहे की चिंता? तुम्हें तो बस एक अलग कमरा चाहिए, लो अलग कमरा। लेकिन अब घर भी तो देख रेख मांगता है कि नहीं? अब 10 साल बने हो गए और ऊपर से आजकल सारा सामान भी तो 2 नंबर का आता है। हमारे जमाने वाली बात अब नहीं, सो टूट फूट तो लगी ही रहेगी। अभी वो जीने के नीचे का प्लास्टर महीने भर पहले 1 बित्ते का था, अब 1 हाथ का हो गया। कितनी बार कहा, पिंटो पिंटू बेटा, एक काम करो, बाजार से मजूर पकड़ लाओ और उसको ठीक करा दो। बेटा, वो जीने के नीचे का प्लास्टर और उखड़ता जा रहा है। लेकिन साहबजादे ने इस कान से सुना और उस कान से, चलिए चलिए माना कि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इसमें भागदौड़ लगेगी, लेकिन फाटक में ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती, बताइए आप? लेकिन वो भी नहीं। अब जिसकी गरज हो वो फाटक में ताला बंद करे। कई कई बार तो रात रात भर फाटक खुले ही रहे। फाटक तो फाटक, कमरे के दरवाजे तक एक आध बार खुले रहे। सुबह मैं उठकर देखता हूं तो फाटक खुले। भगवान की दया है कि कुछ गया नहीं। अरे यही हाल पानी की मोटर का है। कितनी बार तो रात रात भर पानी की मोटर चलती ही रही, सुबह आंगन में पानी ही पानी। यही हाल बिजली का है। जल रहा है बत्ती तो जल रही है, चल रहा है पंखा तो चल रहा है। यही हाल नल का है। बेसिन में हाथ धोया और नल खुला छोड़ दिया, अब बह रहा है साहब। और ये तब तक बहेगा जब तक पानी की टंकी खाली नहीं हो जाती। सिलाई मशीन बड़ी जंग खा रही है। किश्तों पर ली थी मैंने गुड़िया की, उसकी शादी हुई तो मैंने कहा अरे दे दो, उसको काम आएगा। लेकिन सब ने मना कर दिया। क्यों दे दो, काहे दे दो? अरे इतना तो दे रहे हैं दहेज, इसकी बात तय हुई थी क्या? यहां रहेगी तो काम आएगी। लीजिए, काम आ रही है। 25 बरतवा मैं कह चुका हूं। अब पिंटो बेटा, वो मशीन ले जाके दुकान पे दे देते, ठीक हो जाती। लेकिन नहीं, फिर अनसुना कर दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने नाश्ता किया था। नाश्ते से याद आया, जब तक मेरे हाथों राशन आया, बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा कभी नहीं। मैं बढ़िया क्वालिटी के
गेहूं K68 या जो भी अच्छी क्वालिटी का हो ले आता था। पत्नी साफ कर देती थी और मैं ले जाके पिसा आता था। लेकिन जब से साहबजादे लाने लगे हैं सामान, गेहूं देखने को तो आंखें ही तरस गई। बंधी हुई बोरी में गेहूं आता है, बंधी हुई बोरी में आटा आता है। अब पता नहीं साला कितने दिन पुराना है, किस क्वालिटी का है, लेकिन कौन कहे। एक बार मैंने कहा तो कहने लगे, हैं, आप खाली तो बैठे रहते हैं, जाकर गेहूं ले आया कीजिए, मां साफ कर देंगी, फिर पिसा लाया कीजिए। करिए, कर सकते हैं आप इनसे बहस। बस मैं चुप हो गया। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो अरे खुद सुन रहे हो या पूरे मोहल्ले को सुना रहे हो? धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। यही एक मरा टीवी आ गया, जिसको देखो वही उससे चिपका पड़ा है। अब कुकर गैस पे चढ़ा है, अब कुकर की सीटी की आवाज कान में पड़ गई तो उठकर गैस धीमी कर दी जाएगी, नहीं तो जल रही है दाल तो जले। दूध उबल रहा है, उबले, किसे यहां चिंता है, किसी को नहीं। घर की सफाई, घर की सफाई का तो आलम यह है कि जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे। देखिए, जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे, छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, कॉकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं, और मक्खी मच्छर तो खैर घर के सदस्य हैं। सुबह सुबह मेहरी आती, गंदे संदे पानी से पोछा मार देती, एक हाथ इधर एक हाथ उधर। लेकिन सिर्फ फर्श से ही तो घर नहीं है ना, अरे दीवारें और छत भी तो है, वो भी तो सफाई मांगता है कि नहीं। लेकिन यहां किसी को कोई चिंता नहीं। अब 3 महीने से बाथरूम के फ्लश की टंकी चूर है। कितनी बार मैंने कहा, पिंटो, ए बेटा, बेटा कभी तो कोई बात सुन लिया करो। वो देखो, बाथरूम के फ्लश की टंकी 3 महीने से चू रही है, किसी प्लम्बर को पकड़ लाओ, ऐसा काम है ठीक करा लो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं। यहां मेरी कोई नहीं सुनता। ये घर अब बर्बाद है, सब यहां बहुत व्यस्त है। ठीक है, मुझको क्या है, कौन मुझे अपने साथ लेकर जाना है। अरे भैया, बरस 2 बरस की जिंदगी है, किसी न किसी तरह कट ही जाएगी। लेकिन सच बताएं तो ये सब हमसे देखा नहीं जाता। अब तो मैं उस टंकी को मैं ही ठीक करके रहूंगा। हाँ, मैं ठीक करके आता। So, thank you everyone. This was all about my performance. Hope you all liked it.
I must say, playing a character with a huge age difference between the character and yourself is quite a task, and you nailed it. It was great That watching you. Thank you. And I just got to know that today is World Environment Day. So, from my side, from Goals and Name side, I wish you all very happy World Environment Day. And uh, I just request you all to please sing a few lines of the school anthem. And Sakshi, I want you to join with me. I'm not a good singer, but yeah, please, we can. We are children of sun, we over the whole world we shine, shining stars of our country, on stormy seas and sunny skies. We are children of sun, we over the whole world we shine, shining stars of our country, on stormy seas and sunny skies. Years and lives will take us away to find our fortune one fine day. But in our hearts we'll never forget the sunbeam of our childhood days. We are children of Sunbeam, over the whole world we shine, shining stars of our country, from stormy seas and sunny skies. Oh, thank you so much. I'm feeling very nostalgic right now. Thank you. I would also like to thank the audience for joining with us. We sincerely Yeah, thank your presence. I must say that I'm very thankful to the Sangeem management, our respected chairman, sir, director, ma'am, deputy director, ma'am, principal, Parveen, ma'am, Areen, Aditya, sir, and the whole Sangeem staff to have faith in me and believing me. And I hope that I have proved myself. So thank you. Thank you so much. Jai Hind, everyone. Thank you everyone for joining with us.